যে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল সারা বিশ্বে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, সারা বিশ্বের মানুষের দুর্দিনে সুদিনে সকল মানুষের পাশে থাকে, তেমনি বহরমপুর লায়ন্স ক্লাবও তাই তাদের একটি অংশ। আজকে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের যারা লায়ন্স ক্লাবের সদস্য, তারা ভারত এবং বাংলাদেশ মৈত্রী সদ্ভাবনা উভয় যে সম্প্রীতি, সেই সম্প্রীতির কামনা করে সাইকেল র্যালি করছেন। সে সাইকেল র্যালি শুরু হয়েছে ব্যারাকপুর গান্ধী ভবন থেকে। বহরমপুরে আজকে এসে পৌঁছেছেন, এরপরে সোনা মসজিদ, মেহেদিপুর মালদার, সেখান হয়ে রাজশাহী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পরে তারা আপাতত শেষ করবেন নোয়াখালী। একটি বার্তা দিতে চাই যে আমরা বাংলাদেশি হই, ভারতবর্ষী হোক, আমরা সকলে এক, আমরা ভাই ভাই, আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, আমরা শান্তি চাই, উভয় দেশের সম্প্রীতি চাই। তো এই যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতিগত সম্প্রীতি, ভাষাগত সম্প্রীতি যাতে আমাদের জীবনে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি না হয়, সেই বার্তা নিয়েই কিন্তু আজকে লায়ন্স ক্লাবের প্রায় 100 লোক সদস্য তারা সাইকেল র্যালি করছে এবং তার পেছনে আমাদের সারা ভারতবর্ষে যত লায়ন্স ক্লাব আছে তাদের সমর্থন আছে। তো আমরা আশা করব যে আমাদের এই যে সম্প্রীতির বার্তা যারা সাইকেল র্যালির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বাংলাদেশে, এবং বাংলাদেশ থেকে তারাও সেই সম্প্রীতি আশা করবেন এবং আগামীতে আমাদের যে উদ্দেশ্য ভারত জোড়ো, পৃথিবী জোড়ো, আমরা সকলে এক, আমরা মানুষ, আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই, সেই এক জাতি, এক পৃথিবী, এক ভাষা, এক চিন্তা, এইটাই যাতে মানুষের মনে থাকে, মানুষের কোনো ধরনের কোনো বিভেদ না থাকে, মানুষের মধ্যে যেন কোনো রকম দূরত্ব না থাকে, সকলেই আমরা আগামী দিনের মঙ্গল চিন্তা করব, দেশের চিন্তা করব। এখানে বিভিন্ন জায়গার থেকে এসছেন বিভিন্ন লায়ন্স ক্লাব, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যতগুলো লায়ন্স ক্লাব আছে প্রায় বিভিন্ন লায়ন্স ক্লাবের প্রতিনিধি আছে আমাদের মধ্যে। এখানে বাংলাদেশ নয়, এখান থেকে যাওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে, সে বাংলাদেশে গিয়েছে তাদের সঙ্গে তারা ওখানে রিসিভ করে। আপনার নাম? মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী। আমি হচ্ছি 322B2 ডিস্ট্রিক্ট যে আমাদের আছে 120টা ক্লাব, তার আমি ক্যাবিনেট মেম্বার। এটা হচ্ছে বহরমপুর লায়ন্স ক্লাবে, এখানে আমরা তাদেরকে রিসিভ করছি। এটা কিন্তু গোটা কলকাতার থেকে উদ্যোগ হচ্ছে ডক্টর স্নেহালে মধুভাই দাস, ওড়িশা। Oh, how am I feeling? Today I'm feeling a little tired but excited to go on. It's day 4 and I'm getting through it, through the heat, through the rain and all these amazing people that are with me. How many kilometers will we do on cycle? Altogether from India to Bangladesh, 1,009 kilometers altogether. Any message? And peace, goodwill and harmony to everybody around the whole world. Where are you coming from? I've come from England, London, UK. Your name? My name Lorraine. Thank you. Pleasure. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी है और मैं भारत बांग्लादेश सद्भावना साइकिल यात्रा के आयोजकों की तरफ से बात कर रहा हूँ। इस यात्रा का आयोजन महाराष्ट्र की स्नेहालय संस्था ने किया है और साथ में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि हावड़ा की समरिटन हेल्प मिशन, बांग्लादेश का नोआखाली वाला गांधी आश्रम ट्रस्ट, इन सभी की मदद से हम लोग ये साइकिल यात्रा निकाले हुए हैं। इसका उद्देश्य है कि हम लोग शांति और सद्भावना का संदेश समाज में देना चाहते हैं और भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को और मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारे साथ 60 युवा हैं जो भारत के अलग अलग प्रांतों से आए हैं और हम लोग इनको लेके रास्ते में जो भी संस्थाएं आती है, अलग अलग सामाजिक काम होते हैं
या सामाजिक कार्यकर्ता मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं ताकि इन युवाओं को बहुत सारी कल्पनाएं मिले। अगर हम इनको कल्पनाओं से समृद्ध कर दें तो ये देश के विकास के लिए अपना रास्ता, अपना तरीका ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। और पिछले बार भी 2021 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौर पर हमने एक साइकिल यात्रा निकाली थी, जिसमें हम लोग अहमदनगर महाराष्ट्र से नोआखाली तक गए थे और हमने 6 राज्य और 2 देशों के बीच में भाईचारा, एक प्यार मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश की थी। इस यात्रा में भी हमारी वही कोशिश हो रही है। हम 22 तारीख को बांग्लादेश में मोहाड़ीपुर बॉर्डर से अंदर जाएंगे और फिर वहाँ से तुंगीपारा, शरीयतपुर, राजशाही, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में जाएंगे, सिविल सोसाइटी से मिलेंगे। हम लोग स्ट्रीट प्ले करते हैं, सद्भावना के गीत गाते हैं और रोज़ शाम को सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं कम्युनल टेंशन है वहाँ जाके लोगों से मिलके सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं, जिससे कि भाईचारा बढ़े। तो ये हम लोग अपने स्वतंत्रता आंदोलन की जो भावधारा है, विचारधारा है, उसको नई जनरेशन में लाने के लिए, इनकलकेट करने के लिए ये साइकिल यात्रा हमने निकाली है। आपके ये यात्रा में बहुत सारे प्रोफेशन के लोग भी हैं, इसमें कहीं भी है पैदल चल के गए हैं बहुत सारे। कौन कौन से खास लोग हैं इसमें? बहुत सारे लोग हैं सर। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसमें आर्किटेक्ट्स हैं, इसमें एक्स प्रिंसिपल्स हैं, इसमें एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, इसमें लॉयर्स हैं बहुत जाने माने, बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं को चलाने वाले। इसमें मैं नाम अगर लूँ तो एक्स प्रिंसिपल हमारे जवाहर जी काबरा हैं, जो गांधी इंस्टीट्यूट चलाते हैं जालना में। एडवोकेट श्याम आसावाई जो अन्ना हजारे जी के साथ बहुत साल से काम करते हैं, उनके लॉयर हैं। एक एडवोकेट दीपक धीवर जी हैं। एक मिस्टर श्रीराम पवार है जो इलाहाबाद बैंक के बहुत बड़े अफसर थे, बहुत अभी रिटायर हुए हैं। और एक 13 साल का लड़का है कौस्तुभ, और 70 साल के श्रीराम पवार हैं। तो आप रेंज भी देखिए क्या है। इसमें 22 लड़कियां भी हमारे साथ हैं। उसमें भी अभी जो नया टीम ज्वाइन होगा मालदा में, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं अलग अलग। तो ये एनजीओ चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक 500 बच्चों का एनजीओ चलता है, विद्यार्थी सहायक समिति, जिसमें नोमैडिक ट्राइब्स के बच्चे हैं। तो हमारे साथ सब धर्म के लोग हैं। हमारे साथ हनीफ शेख हैं, हमारे साथ फारूक बेग हैं, हमारे साथ जॉयस हैं, हमारे साथ निक कॉक्स हैं और लॉरेल हैं जो यूके से आए हैं। तो ये बड़ी कलरफुल साइकिल रैली है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग देश के, भारत के सभी प्रांतों के लोग हैं। अजीत राजगोपाल बहुत जाना माना आर्किटेक्ट है, केरल से आया है। तो सद्भावना पर विश्वास रखने वाले विश्व के बहुत सारे अच्छे लोग इस साइकिल यात्रा में साथ में आए हैं। और हम लोग लायंस क्लब को धन्यवाद करना चाहेंगे। कलकत्ता से लेके यहाँ तक उन्होंने बहुत मदद की है, बेरमपुर तक। हमारी साइकिलें जो है वो लायंस क्लब ने हमको दी है और ये हम लोग बांग्लादेश में जाके वहाँ के लड़कों के लिए लौटाने वाले हैं। तो ये भी एक अनुभव है कि हम लोग साइकिलें लेके जा रहे हैं जो लायंस क्लब ने डोनेट की, और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ के जो ज़रूरतमंद युवा है उनके लिए हम लोग ये छोड़ के आएंगे। इसमें गांधी आश्रम ट्रस्ट नोआखाली, उसने विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन किया है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो हम लोग उसमें भी शामिल होने वाले हैं। सर आपका नाम और मेरा नाम डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी है और मैं स्नेहालय नाम की संस्था के साथ पिछले 35 सालों से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। थैंक यू सर। भैया, रैली में भाग लेकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं 2 देशों को जोड़ने के लिए, उनके बीच का प्यार उन्हें समझाने के लिए। बस। और कितने किलोमीटर आप साइकिल चला देंगे वहाँ से? हम टोटल वहाँ से यहाँ तक करीबन 1500 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे औरों के लिए? औरों के लिए बस अपने देश से प्यार करिए, हम भाईचारा रखिए, बस। मैम आपका नाम? पल्लवी गवली। कहाँ से हैं आप? अहमदनगर, महाराष्ट्र। लग रहा है इस साइकिल अभियान में भाग लेकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमारा रिटायरमेंट के बाद का लाइफ है और आई एम एंजॉइंग फुल्ली। और ये जो संदेश जो मानवता का संदेश लेके जाति धर्म से ऊपर उठकर हम जो यात्रा निकाले हैं, वो कलकत्ता से निकल के हम लोग बांग्लादेश तक के जा रहे हैं। और ये संदेश हम लोग वहाँ पर भी पहुँचाएंगे ताकि पूरे देश में पूरे भाषा का जो भेद है वो भी दूर हो जाए और सब इकट्ठा करके मानवता का प्रचार करें। ये हमारा संदेश है। सर आपका एज कितना है? सर हमारा 62 कंप्लीट हो गया है जस्ट अभी। थैंक यू। आपका नाम? प्रदीप देशपांडे फ्रॉम नागपुर। थैंक